Friends, India's military is all prepared to strike at Pakistan. Borders on high alert amid Pahalgam attack aftermath. India has readied a formidable arsenal, including the Rafales and the Sukhois, equipped with BrahMos missiles. The Russian-made advanced Triumph S-400 missile defense system also in place, as also the Pinakas, the rocket system capable of firing 12 rockets within 44 seconds. And of course, not to forget the Akash and the Prithvi missiles. Indian Navy warships armed with BrahMos missiles are also positioned in the Arabian Sea. In fact, we saw their live fire exercises that have been going on since the last 48 hours and more. And essentially, India sending across a message that time has come to make sure that Pakistan pays the price of its harboring of terrorism. We have Harsha live, in fact, from the Western Front, somewhere in the Western sector. Harsha, over to you. Please tell us, without telling us from where exactly in Rajouri you are reporting, what's the preparedness like? So Abhishek, I'll not tell the village where I'm reporting from, but yes, this is somewhere around 5 to 6 kilometers from the LOC. Behind these mountains is the LOC, and the preparedness I would like to show, because the Kashmiris and civilians have already started preparing. They have started cleaning the bunkers and the place where almost 200 to 400 residents are here. Almost 10 to 15 bunkers have been made right now. This is how this bunker look like, which is 2.5 meters deep, 3.5 meters wide, and 3.5 meters long. The height, if we talk about it, it's almost 8 foot. But we'll go inside because this entire area has been cleaned for the villagers, that in case there is a cross firing and shelling from the side of Pakistan, how the entire villagers can gather themselves here and can protect themselves from the cross firing. Right now I'm reporting from here. There are 2 doors. This is one door of the bunker. This is the another part of the bunker where we move inside slowly and gradually. They have started moving entire system over here inside the bunker. But this is the cleanliness which they have done right now. Mohammed. All right, some network issue there. Remember, these are difficult terrains along the border on the Western Front, from where we have our reporters from Kutch in Gujarat to right there in Jammu and Kashmir. And we had Harsha reporting live from Rajouri and the border along that region. Harsha is back with us, I am told. Let's go back to Harsha. Harsha, over to you. Yes, Abhishek, we can't move more inside because it's a network issue in most of the areas here. But yes, Mohammed is right now with us, who has made this bunker. If we talk about the height, it's almost 8 foot, and I was talking about the width, length and the depth of this entire bunker. Mohammed ji, aap thoda sa aage aa jaiye. So this Mohammed has already cleaned the bunker, and he says that how important it is because it's almost 5 kilometers the LOC, and they're scared right now that how the situation if worsens, the nearby villagers can also gather here in the bunker. मोहम्मद जी, अभी जो माहौल है, अभी जो सिचुएशन है आसपास एलओसी की तरफ, आप लोगों को लगता है कि भय का माहौल इतना है और अपनी तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए आप लोगों को? जी, हमने तैयारी तो पूरी कर रख रहे हैं, डर के भी तो अपना तैयारी तो पूरी है। उस वजह से पहलगाम हमले से बाद हम तो डरे तो हुए हैं। तो पहलगाम अटैक के बाद वहाँ पे जो टूरिस्ट पर हमला हुआ, उसके बाद क्या सभी गांव वाले जो हैं उनका भी ये सोचना है कि अपने घरों में बंकर बना ले, तभी हम सुरक्षित रहेंगे? कल को अगर फौजियों को भी ज़रूरत पड़ी तो कम से कम ये बंकर काम आ सकता है। वो इस्तेमाल तो करेंगे ना, सभी ज़रूरत तो सबको है बंकर की। अभी पूरे गांव में क्या माहौल है, क्योंकि डुंगी भी बगल में है और आसपास 3-4 गाँव हैं जो एलओसी के करीब पड़ते हैं? तो सब भी यही है, ये कुछ बैंकर हमारे पास ये थोड़े से हैं, तो बाकी तो है तो परेशानी है सब जी। हमें कोई अपना इंतज़ाम करें या कुछ भी करें, इतना कहाँ करेंगे, गरीब लोग हैं, इतना इंतज़ाम हम नहीं कर सकते। हाँ। तो एक बंकर में लगभग कितने लोग आ सकते हैं, और अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो कितनी फायरिंग को झेल सकता है बंकर? एक इसमें तो यही 50-60 आदमी आएगा इस बैंकर में, तो बाकी इसके ऊपर है तो पक्का है, मजबूत है। खालिद जी, लगभग कितने बुलेट शॉट, कितनी फायरिंग को झेल सकता है बंकर अगर शेलिंग होती है तो? देखिए मैम, ये जो बॉर्डर एरिया, फार फ्लंग एरिया है, इस पे जो आपने बात की कि ये कितना झेल सकता है, अगर इसके ऊपर ग्रेनेड पड़ता है तो ये 1-2 ग्रेनेड को निकाल सकता है, उसको सहार सकता है। अगर अदरवाइज़ कहीं दूसरी जगह में पड़ता है, जो उसकी जो लेंथ होती है जैसे बंदे को मारने में, तो ये दीवारों के साथ जब लगता है तो अंडरग्राउंड है, तो
तो ऊपर से वो शैलिंग निकल जाती है, तो उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। जो हमारी आर्मी है वो यहाँ पे काम कर सकती है, यहाँ से अपना पूरा काम जो वो करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे बंकर हैं ये बड़े कम मात्रा में बने हुए हैं। ये बंकर जो होने चाहिए, ये बंकर होने चाहिए एलसी लाइन से लेकर जहाँ तक 5 किलोमीटर हवाई में तक जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, जहाँ तक रेंज आती है, जहाँ से जैसे हमको माहौल खाता है, तो इन लोगों को निकाला जाता है। ये पूरा आपका इलाका है, यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, गांव की आबादी अच्छी खासी है, 1400 करीब के वोटर हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि सिर्फ 2-3 बंकरों से काम नहीं चलेगा? देखिए मैम, ये एक पंचायत है हमारे डुंगी, तो ये हमारा एक मोड़ा है, इसमें 2 बंकर बने हैं, तो ये 2 बंकरों से काम नहीं चलने वाला। तो इसमें मैक्सिमम बंकर होने चाहिए, 100 से 150 बंकर होने चाहिए, 150 के आसपास पर पंचायत में बंकर हो, तो लोगों को कुछ सुरक्षा मिल सकती है, लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए ये काम आ सकता है। और मोहम्मद जी, अगर इस बंकर के मजबूती की बात करें तो क्या बंकर की मजबूती, ये जो दरवाजे हैं, जो 3 दरवाजे हैं, 2 हिस्सा है बंकर का, क्या ये इतना मजबूत है ये बंकर कि ये सब लोग को अंदर इसमें सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे सारे लोग, और अगर फायरिंग होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान कोई नहीं होगा, सेफ रहेंगे। नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये मजबूत है किस चीज़, ये कितनी मजबूती की सरिया लगाई जो है? कुल सरिया में, इसमें कम से कम 35-40 क्विंटल सरिया में जो लगाया हुआ है। अच्छा, 35-40 सरिया का इस्तेमाल? क्विंटल, हाँ क्विंटल ये पूरा लगा हुआ है, हमने खुद क्वेश्चन पूछ लूं? साथ होके बनाया हुआ है। तो खालिद जी, तो खालिद जी, ये बात देखिए, लगभग कितनी सरियाओं के साथ कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं बंकर? देखिए मैम, जो शेलिंग है, शेलिंग के रोकने के लिए ठीक है, बट जो जिस तरह से गोले पड़ते हैं, गोलों के लिए नहीं है। हाँ। गोला एक इसके ऊपर पड़ेगा तो टूट सकता है। अच्छा, गोला हाँ, इतना मजबूत नहीं है कि उस वक्त का जो ड्राइंग बनाई हुई थी ना, वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी 1 फुट की जो है ये, और 8 फुट हाइट है, और 2 फुट का इसका लेंटर है। तो इसमें जो शेलिंग होती है, जैसे कहीं दूसरी जगह पड़ता है, तो जो उस एरिया को कवर करता है ना, अगर ये अंडर ग्राउंड होगा तो कुछ परसेंट लोग जो है इसमें बच सकते हैं। So Abhishek, this is how bunkers are being made for safety. Yes, they are saying that it's strong enough to protect several villagers who will take shelter here in case the situation escalates. But yes, I would like to show the mountains also. Behind these mountains is the LOC, and almost 5 villages are. And in fact, 5 villages are along this LOC. Back to you. Thank you so much, Harsha. Those are good pictures. You know, that gives an idea to us here in the hinterland as to what kind of difficulties people face when a war-like situation emerges, the kind of preparedness that they have to have and be ready to face bullets, shelling, bombs, whatnot. I mean, the manner in which that villager was talking about shelling and bombings, it really gives you an idea of the kind of difficulties, hardships citizens face so that we as a nation can stand strong and inflict costs of terror on Pakistan. As part of that same preparedness, let's show you some more coming in from other parts of the border. Again, on the western front, these are helipads that have been built at many places on the way to the border in Rajasthan. This seems like the general area of Jaisalmer. Now, if there is any problem in the deployment of medical emergency services and military officers need to reach immediately, so these helipads have been prepared. Remember, this is like the highway. This is not a designated helipad, but this is like on the highway, like we have seen a couple of places, more than a couple of places where we have in fact airstrips built over the highways. This is one highway on the road to border in the Rajasthan state where helipads have been marked. Let's look at a ground report coming in from Vaibhav. हम इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद हैं। ये सीधा रास्ता बॉर्डर तक गया है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त जो हालात और जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के चलते हमारी इस देश की सेना ने जो तैयारियां की हैं, वो तैयारियां अपने आप में मुकम्मल हैं। दरअसल इस सड़क पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है
यहां पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहां पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है या फिर यहां पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इश्यू होता है, उस हेल्थ इमरजेंसी और साथ ही यहां पर अगर कोई बड़ा सैन्य अधिकारी पहुंचता है तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। यह सड़क सीधा बॉर्डर को जाती है और हमारे ठीक सामने ये रास्ता जैसलमेर की तरफ गया है और इस मुख्य सड़क पर इस हेलीपैड का निर्माण किया जाना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि हमारी देश की सेना ने हर मुमकिन तैयारी कर रखी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसकी हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की ये सीमा, जिस सीमा पर पूरी तरह से अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देश की सेना को पूरी तरह से छूट है, कब कहां और कैसे एक्शन लेना है यह प्लान सेना ही इस देश की तय करेगी। उसके बाद से इस सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाऊं तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान में यहां पर हमारी देश की सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरे विजय महेश अगर एक बार आपको आगे से दिखाएंगे तो मैं इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर तीन दरवाजे जो है ये खिड़की नुमा खुलते हैं और इसी दरवाजे से इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ये इस बंकर की पहली खिड़की है, ये इस बंकर की दूसरी खिड़की है और इसके ठीक बगल यानी कि अगर हम बाएं तरफ चले तो ये इस बंकर की तीसरी खिड़की है और इस खिड़की से हमारे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से इस सरहद की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक बंकर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सामने नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक और बंकर है और ये लाइन से तकरीबन बॉर्डर तक यहां पर तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को अब दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। लोहे की मोटी चादर से बने ये बंकर काफी मजबूत और हर मौसम में टिकाऊ हैं। हालांकि टेम्परेचर जो है वो इस बंकर के अंदर बाहर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमारी देश की सेना, हमारी देश के सुरक्षा के प्रहरी, हमारी देश के सरहदों के प्रहरी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं कि अगर नापाक पाकिस्तान हमारी देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके। All right, breaking news development coming in, big one. The DGMOs of India and Pakistan have established contact and that happened yesterday. The Director Generals of Military Operations, the DGs of the Directors General of Military Operations, the DGMOs of the respective countries on a hotline had a conversation on the unceasing ceasefire violations by Pakistan since the April 22 Pahalgam terror attack. Pakistan has been indulging in small arms fire every night, every day since the last 5-6 days. And in fact, this is the highest number of small arms fire incidents that have come in from the Pakistani side. The number is 2651, 2651 small arms fired and ceasefire violations being carried out, having been carried out by Pakistan. India has warned in those DGMO talks yesterday that if this continues, there would be costs. And the Pakistanis obviously jittery now, and that's why we have seen the kind of press conferences that they are carrying out. DG ISPR yesterday made a mockery of himself by alleging that Indian soldier or an officer was involved in some kind of terror activity in Pakistan. All right, we have in fact a ground report explaining to you, friends, of the kind of ceasefire violations that have been carried out by Pakistan and what impact it has had on our side of the border. Let's have a look.
Right now we are in the Pragwal sector of the international border, and here Pakistan resorted to 6 cross-border firings in the last night that were happened along the line of control as well as the international border. Pakistan was given a befitting reply, but this is a crisis time for the farmers here, because all those machine owners that have come along with their big machines to harvest their crops, they have decided that they will be heading back. Because I'll request Sarjeevan to keep showing you first the visuals of this very area and also the Pakistani post that is there, from where the Pakistan used to target these areas, and that is what the prime concern for these people are, that they don't know what lies next for them, because these machine operators that have come from Punjab, they have decided to return. I have with me these operators of the machines, so we'll try to speak to them also. आप लोग पहले मतलब काफी देर तक रुकते थे, इस बार आप लोग जल्दी जा रहे हैं? सारा फायरिंग हो रही है जी, खतरा है जान को। 5 महीने लास्ट जाते हैं। हाँ, 4 महीने लग जाते हैं। इस बार तो 2-3 महीने में चल रहा है। नहीं अभी 15 दिन हुए तो 15 दिन में ही वापसी आप लोग? हाँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मुझे एक बात बताइए, पूरा इलाका आपने देखा है, अभी क्या आधी फसल कटी है कि नहीं? आधी कट गई, आधी रहेगी, आधी से ज्यादा पड़ी है अभी। से ज्यादा रहेगी। अब जा रहे हैं वापस, खतरा है। किसी ने कहा नहीं कि ठीक हो जाएगा हालात? नहीं, सब यही कह रहे भी खतरा है। हमने पूछा है कई को। रात को भी फायर हुआ? रात 2 फायरिंग हुए हैं। आप समझ सकते हैं दैट द फायरिंग हैज टेकन प्लेस। वी हैव सम लोकल फार्मर्स विद अस आल्सो। आप मुझे ये बताइए देविदास जी, आपसे बात जब मैं कर रहा था, क्या लगता है मतलब अगर ये लोग चले जाएंगे तो आपकी फसल जो है वो तो कहीं खराब ना हो जाए? सर बर्बाद ही होगा, फिर कौन काटेगा? आत्मसदा भी काटता कोई नहीं है ना, तो बर्बाद ही होगा। जब जिम्मेदार लोग मारे जाएंगे बेचारे। अभी पानी भी नहीं आ रहा, नहर में आग लग जाएगी, कहाँ से जलाएंगे? आग बजाने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है ना। किसी जगह तो आग लग गई है। अभी तो 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है परगवाल में, तो जहाँ पहुँचती है वो अब तक जल जाता है। 10-20 लाख जल जाता है। 10-20 लाख जल जाता है। दिस इज द एक्चुअली द क्राइसिस दैट द फार्मर्स आर फेसिंग। Major Samartur explains where India can hit Pakistan if both countries go to war. Listen to him. He's someone who has been in the forces. He knows what he's talking about. As far as the strike options are concerned for the Indian Armed Forces, so you see, the first priority will be the launch pads, the terrorist launch pads from where these terrorists